الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین ثم آمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 50 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 51 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں پیغامات جو ہے وہ سمجھائے اور ہمیں بتائے اور ہمیں طریقے سے آہستہ 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 معاشرتی سطح کے احکامات بتائے اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے تو گھرانے کے اندر جو معاشرے کا جو اکائی بیسک بنیادی یونٹ گھر ہے اس کی تشکیل کے طریقے اللہ تعالیٰ نے سکھائے، مرد عورت کو، پھر آپس میں ان کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیسے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد گھر سکون اور جنت کے گہوارے بنیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں امن اور سکون ہوگا، اور معاشرے میں مزید امن اور سکون کو قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقوق العباد ہمیں سمجھائے اور سکھائے، اور اس کے اندر اللہ نے ہمیں پڑوسی اور ہمسائے کے خاص طور سے حقوق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ حقوق العباد ادا نہیں ہو سکتے جب تک انسان کے اندر سے 3 بڑی بڑی برائیاں نہ نکل جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ 3 برائیاں نکالی تھی اور بتا دیا تھا تکبر، بخل اور اس کے بعد ریا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سے نکالی تھی کہ جب یہ چیزیں نکلے گی تو انشاءاللہ انسان اپنی ذات سے بڑھ کر دوسرے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا تھا، کچھ کہ اگر تم باہر نکلنے لگو گے تو کیا ہوگا۔ ہاں، پھر شراب کی حرمت کا حکم آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کا ہمیں، کیونکہ انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہمارا دین اس کی حفاظت کرتا ہے، کسی بھی دوسرے انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس شراب کی حرمت کا 2nd کیٹیگری کا جو حکم تھا، 2nd درجے پر آنے والا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہاں جب نماز پڑھو تو پھر تمہارا کیا رویہ ہو، کہ تم پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے مخاطب ہو اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم جو بھی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہو تمہیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہاں، کچھ باتیں بتا دی گئی تھی کہ کچھ ناپاکی اور پلیدگی کی حالت میں وضو تو ہوگا ہی نہیں، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی، تو اس وضو کو کرنے کے لیے یا پاکی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تیمم کا حکم دے دیا تھا کہ اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم سے کام لے لو، لیکن پاکی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنا ہے، پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے تیمم کو کرنے کا طریقہ سیکھا۔ پھر اللہ نے ہمیں کچھ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے غلط رویوں کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ وہ خود ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ان اعمال سے روکنے کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ نے وہاں پہ ایک اور غلط طریقہ کیا بتایا تھا کہ وہ زبان کو موڑ توڑ کے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ نے سکھایا تھا کہ کیسے باتوں کو ذو معنی الفاظ ہی نہ استعمال کرو کہ جو ذو معنی ہوتے ہیں، مطلب ایسے الفاظ ہی نہ استعمال کرو، سیدھے سیدھے الفاظ استعمال کرو۔ اور ہم نے یہ رویہ سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہر کوئی آ رہا تھا، یہود بھی آ رہے ہیں، نصارہ بھی آ رہے ہیں، مشرکین بھی آ رہے ہیں،
मतलब हर कोई आ रहा है, सिर्फ मुसलमान नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके इल्म हासिल करते थे, लेकिन ये सिखा दिया गया था कि दूसरे तो आके मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुमने ऐसे तमाम माल से परहेज करना है जिससे तुम लोगों की तज़हीक हो सके, लिहाजा वो अल्फाज ही बदल दो। और साथ साथ बात ये सिखा दी गई थी, गौर से ही सुनो, जब तुम बात ही को गौर से सुनोगे तो खामखा बीच में टोकने की, उस्ताद को टोकने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। तो अब मज़ीद इल्म हासिल करने के कुछ तरीके जो है वो सिखाए गए। यहूद और नसारा की कुछ गलत रवियां दिखा के अब मुसलमानों को तरीके सिखाए जा रहे हैं कि अब उन्होंने क्या करना है। यहूद और नसारा और कौन कौन से गलत आमाल करते थे, एक तो हमने वो चीज़ पढ़ी, फिर वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी हमें बताया था कि ये जो किताब तुम्हें दी गई है, इसी किताब की हर बात को मानना है। ये नहीं है कि तुम इनमें चेंजेस कर लो, ये ना हो कि जैसे उन लोगों ने चेंजेस किए थे और कहा था मासून तो लिया मानेंगे नहीं, और सख्त वालों का तरीका हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, नाफरमानी की थी अल्लाह के अहकामात से, अपनी मर्जी को कान इधर से नहीं उधर से पकड़ने वाला रवैया अख्तियार किया था, हीले बहाने हुज्जतों से सख्त का कानून तोड़ा। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, उनको बंदर बना दिया था। तो ऐसे रवैये इख्तियार करने से अल्लाह ने हमको भी यहाँ पर टोका था और ये कह दिया था। देखिए, जब मैंने आपको आखिरी में जब बात खत्म करते हुए बताया था, जब अपनी मर्जी से अहकामात इंसान चेंज करता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपने नफ्स को खुदा बना रहे होते हैं। अपनी मर्जी का दीन कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी के अहकामात कर रहे हैं, तो हम नफ्स को खुदा बना रहे हैं। तो अल्लाह ने ये बता दिया था, अल्लाह शिर्क को बस माफ नहीं करेगा। चाहे तुम किसी भी किस्म का शिर्क करते हो, चाहे अपने नफ्स को खुदा बना के नफ्स की बातों को पूछते हो और अल्लाह की बातों को साइड पे कर देते हो, तो दौड़ गोया अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ इस शिर्क की भी बख्शिश मुमकिन नहीं होगी। बाकी तमाम गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। तो अल्लाह हमें शिर्क की पहचान भी अता फरमाए और अपने नफ्स की बातों में उलझने और फंसने और उनको मानने से बचने की भी तौफीक नसीब फरमाए। अब फिर जो अपने हर बात को मानने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं। हाँ जी, मैं तो हुई ऐसी, मैं तो नेक ही बड़ी, मैं तो ये भी करती और वो भी, मैं कैसे गलत बात कर सकती हूँ। ठीक है ना, वहाँ पर हमने अपनी बात को ख़त्म की थी। तो अब अल्लाह सुब्हाना ताला एक और रवैया बता रहे आगे, बहुत गौर से समझने की बात है ये, इसीलिए मैंने इतनी तमहीद आपको भी बांधी कि अपनी नफ्स की बातों को मानना क्या है, अपने नफ्स को खुदा बनाना। और ये एक शिर्क का एक अंदाज है जो इंसान गैर महसूस तरीके से कर रहा होता है। अब इसी नफ्स को खुदा बनाते हुए लोगों ने क्या किया, अहले किताब यहूद और नसारा का एक और रवैया बताया गया कि उन्होंने क्या किया कि अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अहले किताब में से इल्म का कुछ हिस्सा दिए गए थे, किताब का कुछ हिस्सा उनको दिया गया था, उनको मालूम था कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, लेकिन वो ईमान किस पर ला रहे थे, युमिनूना बिल जिब्ती, वो ईमान ला रहे थे जिब्त के ऊपर। अल्लाह की आयत को मानने के बजाय वो किसको मान रहे थे, जिब्त को मान रहे थे। और किसको मान रहे थे, वह तागूती, और तागूत पर ईमान ला रहे थे। किताब का हिस्सा मिला, किताब का इल्म दिया गया, ईमान उन आयात के ऊपर लाने के बजाय वो किसको मानने लगे, जिब्त को मानने लगे और तागूत को मानने लगे। और वो कहने लगे यक़ूलूना, और वो क्या कहते थे, लिल्लज़ीना कफ़रू, कुफ्र करने वालों से, कि हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, कि ये जो कुफ्र करने वाले जो हैं ये तो ईमान लाने वालों से ज्यादा हिदायत पर हैं, ये तो ज्यादा सीधे रास्ते पर हैं। जिब्त और तागूत को मानने के बाद वो क्या कहते थे कि कुफ्र करने वाले ज्यादा सही काम कर रहे हैं, ईमान लाने वाले सही काम नहीं कर रहे। मतलब इसका यही है ना। तो जिब्त और तागूत क्या है जिस पर वो ईमान ला रहे थे, और ईमान लाने पर उसको कहते थे ये जिब्त और तागूत बेसिकली वो चीजें हैं जो अहले किताब का रवैया नहीं था, सिर्फ हमारा भी नजर आता है। जिब्त कहते हैं हर उस चीज को जो बेकार है, मोहमिल है, खराफात है, बेफायदा है, कोई उसकी हकीकत नहीं है। इसमें तीन चीजें आती हैं,
हर वो चीज जो बेकार है, मोहमिल है, खराफात है, कोई हकीकत नहीं है उसकी। कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले जादू टोना, सबसे पहले क्या आता है? जादू टोना। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है जिप्स के अंदर? फ्यूचर प्रेडिक्शंस। किसी भी तरह से फ्यूचर को मालूम करना। जादू टोनों में तो जादू टोने, मंत्र, कहानत, सब कुछ, हर किस्म के अमलियात। ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या आ रही थी? पाम में, हाँ जी, जिससे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, ख्वाब वो सितारों की चाल हो, जायचे हो, लकीरें हो, तोते की फाल हो, हाथ दिखाना, हॉरोस्कोप हो, कार्ड्स हो, इल्मुल आदाद हो, जो भी हो जिससे आप क्या कर रहे हो? फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सही है ना? तो अगर आपके दिल में अपने तौर पर ख्याल आ रहा हो कि जी मुझे लगता है ऐसा होगा, वो अपने तक रखना चाहिए, वो कभी नहीं बयान करना चाहिए। ईमान नहीं लाना चाहिए उसका। ख्याल के ऊपर तो पकड़ ही नहीं है ना, ईमान के ऊपर पकड़ है। कुछ लोगों का होता है ना कि किसी को देख के कोई आइडिया करते हैं, आप कह देते हैं मसलन किसी का कोई देवी पैदा होना है या कुछ होना चाहिए, ये बेटा पैदा नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं कि पेट की ये शक्ल है तो जी ऐसा इस तरह होता है। ये तो ना एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस है। इसका कोई गुनाह नहीं। ईमान नहीं ला, ईमान का मतलब ये होता है इतना यकीन होना कि बस टस से मस नहीं कर सकते, ये होता है। ठीक है ना? ये तो इंसान के तजुर्बों से इंसान बहुत सारी चीजें सीखता है, उस पे नहीं होती। ईमान ही अब आपका कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होना है। तीसरी चीज क्या है? नहुसत का तस्वुर। नहुसत का तस्वुर, मनहूस है। कुछ काली बिजली रास्ता काट गई। आज मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था? हाँ जी, बच्चा मनहूस है, बच्चा पैदा हुआ तो फलाना शख्स हमारी खानदान से जो है वो फौत हो गया। उस औरत का शौहर फौत हो जाए तो वो मनहूस हो जाती है, उसको किसी प्रेग्नेंट खातून या शादी वाली बच्ची के करीब नहीं आने दिया जाता। ये नहुसत फिर यहीं तक नहीं रहती, वो इंसान भी मनहूस हो जाते हैं, जानवरों तक नहीं होता। या जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते या जिसके मिसकैरेजेस हो जाते हैं, फिर उसको करीब नहीं आने दिया जाता। फिर वो जी सुहागने ही लगाएंगी, लड़की को दुल्हन को करेंगी, वो उसको ये नहीं है ना, मेहंदी नहीं लगा सकती या उसके करीब नहीं आएंगी, या जी वो उसका साया अपना पड़ जाए। ठीक है ना? कुछ रंगों को भी मनहूस बना दिया जाता है। रंगों को, काले रंग को मनहूस समझा जाता है। ना शादी में जोड़ा लड़की का रखते हैं, ना लड़के का रखते हैं, ना कोई ऐसा कि जी एक रंग जो है वो मनहूसत या गम की अलामत है। ये भी क्या है? ये भी जिप्त है। कुछ तारीखों को मनहूस करार दिया जाता है। मुहर्रम में वो तो महीना आ गया ना, तारीख होती है जी, 13 तारीख को मनहूस समझा जाता है। और ये पूरे यूरोप में या अमेरिका, वहाँ पे 13 नंबर का कुछ होता ही नहीं, फ्लोर 13 नंबर का बनाते ही नहीं। आप लिफ्ट पे देखें 12 तक होता है, उसके बाद 14 से शुरू होता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा है उनमें भी। हालांकि वो काउंटिंग वाइज तो वो 13 फ्लोर ही होगा, लेकिन नाम उसको क्या रखेंगे? 14 फ्लोर। बेवकूफी है, ईमान है ना उनका इस पर। इसी तरह से चांद की घटती और बढ़ती तारीखों के बारे में क्या है? यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकीतु लिन्नासि वल हज। अल्लाह ने लोग पूछते थे ना कि चांद की घटती और बढ़ती तारीखों के बारे में क्या है? कोई बदशगुनी, कोई ओहाम, कोई तोहम परस्ती नहीं है, बल्कि क्या है, लोग क्या करते हैं, घटती तारीखों में जब चांद कम हो रहा होता है तो वो कहते हैं कि ये मनहूस तारीखें, और जो बढ़ती तारीखें हैं उसको कहते हैं ये ठीक है। उसमें अब अपने मंगनियां भी करेंगे, शादियां भी करेंगे, कारोबार भी शुरू करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे। फिर कुछ दिन मनहूस बना दिए जाते हैं, मंगल के दिन को मनहूस बनाया जाता है।
कोई हमारी शरीयत में इस तरह का ना दिनों का कोई तस्वुर है, ना रंगों का कोई तस्वुर है, ना तारीखों का कोई तस्वुर है, ना इंसानों का कोई तस्वुर है, ना जानवर मनहूस होने का कोई तस्वुर है, और ना ही ये महीनों के मनहूस होने का कोई तस्वुर है। कौन सा महीना मनहूस बना देते हैं? सफर में ना कोई शादी करेंगे, ना कोई ट्रैवल करेंगे, ना कोई और मामला करेंगे, क्योंकि ये मनहूस, इसमें बलाएं उतरती है, ये मनहूस महीना है। ऐसा कोई मामला नहीं। ये आपको मैं बताती चलूं कि ये जो सफर को के बारे में जो नहूसत का तस्वुर लोगों ने जो कायम किया, ये मुशरिकीन मक्का के दौर से चल रहा है। और होता ये था कि जब हराम महीने थे ना, 3 ज़िक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम, और उसके बाद 3 महीने हराम के बाद क्या आता था? सफर। मुहर्रम के बाद क्या आता है? सफर। तो 3 हराम महीनों में उनके ऊपर ये कताल, जदाल, उस किस्म की तमाम चीजें मना थी। वो किसी काफिले के ऊपर शब खून नहीं मारते थे, पकड़ते नहीं, उनका तो गुजर बसर काफिलों को लूट कर ही होता था। तो वो जब वो सफर का महीना आता था तो वो खुल कर जो है वो काफिलों को लूटना शुरू हो जाते थे। इस वजह से उन्होंने सफर के महीने को मनहूस बना दिया था, हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं था। समझ आई? नहूसत अल्लाह कुरान में कहता है हमने हर किसी के गले में उसका जो शगुन लटका के रखा है, और अपना शगुन हमारे गले के अंदर है। किसी के करने से, किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के कुर्ब से कभी भी नहूसत नहीं होती। वो पूछते आता है ना, सूरह आलिफ हमने पढ़ा था कि ये पूछते हैं ये तकलीफ कहाँ से आई जंग ओहद में, तो अल्लाह फरमाते हैं उनको कहो ये तुम्हारे अपने हाथों की लाई हुई है। समझ आई? तो इंसान अपने ऊपर जो मुसीबत लाता है वो कहाँ से आती है? अपने गले में उसका शगुन लटका हुआ है। किसी के आने से, किसी के कुर्ब से, किसी के गुजरने से कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती है, किसी रंग से या महीने से या तारीख से या चांद की घटती बढ़ती हालतों से कोई तकलीफ ना हो सका। कोई कॉन्सेप्ट हमारे दीन में नहीं है। इन बातों पर ईमान लाना क्या है? जिब्त है। ये किसका रवैया था? अहले किताब का। ये उनका रवैया था जिनको किताब में से ऊतू नसीबम मिनल किताबी। अल्लाह फरमाता है क्या तुमने उन लोगों को देखा जिनको किताब में से कुछ हिस्सा दिया है? अल्लाह ताला ने कुछ इल्म का हिस्सा दिया है, लेकिन वो उस पर ईमान लाने के बजाय वो किस पर ईमान लाते हैं? युमिनूना बिल जिब्ती, वो तो जिब्त पर ईमान लेकर आते हैं। वत्तागूती, और किस पर ईमान लाते हैं? तागूत के ऊपर ईमान लाते हैं। अच्छा, जिब्त के हवाले से वो बात पहली वाली जो मैंने आपसे बात की, जादू, टोने, मंत्र, कहानत, उस पर भी ईमान लाते हैं। जाते हैं अमलियात करवाने के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास, आमिल, बाबा, सन्यासी, जादूगर, वो बंगाली बाबा, हाँ जी, उनके पास जाके बैठेंगे और ईमान कहाँ से कहाँ चला गया? अल्लाह से कहाँ ईमान आ गया? बाबे पे, बाजियां भी हैं, बाबियां भी हैं और बाबे भी हैं। ये सारे जो जादू टोने करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये ईमान डगमगा रहे हैं, ईमान को खराब कर रहे हैं। ये जिब्त का मामला है। और इंसान अच्छा खासा समझदार मुसलमान उठ के कहाँ चला जाता है? इन बापों के पास चला जाता है। जी, क्यों जाता है? क्योंकि उनको मालूम है कि वो जो अमल करेंगे ना, उससे किसी को नुकसान हो जाएगा या उससे हमें कोई फायदा हासिल हो जाएगा। उसका ईमान कहाँ से कहाँ आ गया? अल्लाह से हटकर तकदीर से ईमान, तकदीर पर ईमान से ईमान हटकर कहाँ आ गया? बाबे पर आ गया, जादू टोने पर आ गया, इल्मुल आदाद पर आ गया, पत्थरों पर आ गया। समझ आ गई? इंसानों पर आ गया। फलाना मेरे करीब आया था, इस वजह से मुझे उसका नहूसत का साया पड़ा, इस वजह से मेरा भी बच्चा जाया हो गया। ये क्या है? ईमान कहाँ से कहाँ पर आ गया?
मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आ गया। तो वो किस पर ईमान आ गया? युमिनूना बिल जिब्ती, वो ईमान लाते हैं जिब्त के ऊपर। मेरा हॉरोस्कोप कैसा गुजरेगा मेरा हफ्ता, ये ईमान किसके ऊपर है? सितारों की चालों पर। वो कार्ड्स पढ़वाए जाते हैं, टैरो कार्ड्स, आप जरा पढ़ के देखें मेरा सितारा क्या कहता है। वो भी तो कितने पढ़े लिखे लोग, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह कह तो रहा है कि उनको किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है, लेकिन वो उन सारी चीजों के बावजूद किस पर ईमान रखते हैं? जिब्त के। इन तमाम चीजों को अल्लाह ताला जिब्त कह के मुखातिब कर रहे हैं कि उन पर ईमान आ जाता है। एक इल्म होना, एक वो होना, वो एक अलग चीज है। उन पर ईमान होना कि उसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया। आजकल मेरे जो सितारों में ना जायचे में जहरा जो है वो बहुत उस पर है, उरूज पर है, नहल वहाँ फलाना जगह पर है, फलाना चीज मुख्तलिफ पता नहीं कौन कौन सी हैं ये चीज़ें, लेकिन बहरहाल ये तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर बिलीव करना। आजकल मेरा सितारा जो है ना, बड़े बड़े लोग आपको बताएंगे कि वो मेरे सितारों में ना इसी तरह नेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। शादी कब होगी, हाँ जी, कारोबार कब शुरू करें, किस्मत पूरी भी निकालते हैं, किस्मत का हाल निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये करेगा, फिर सारा ये सब क्या है? उसी जहन में। तो क्या ईमान कहाँ से कहाँ आ गया? इन तमाम जिब्त वाली चीजों के ऊपर। यस, ये ईमान की कमजोरी। वह तागूती, और तागूत के ऊपर भी ईमान लाते। समझ गए सारी बातें? ये अहले किताब का तरीका। अल्लाह ने, अब आप सुन लीजिएगा, ये सारी चीजें जो हैं, क्या कह रहे हैं? लतीफे जो हमसे बने हुए होते हैं और फिर हम किसी दूसरे पर्सन को उससे मजाक उड़ाते हैं, वो इसमें आए? वह तागूती, तागी, सरकशी। तागूत क्या है? हर वो ताकत, हर वो कुव्वत जो इंसान को अल्लाह की सरकशी की तरफ माइल करते हैं। यानी हर वो ताकत और कुव्वत जो अल्लाह की सरकशी की तरफ लेकर जाए। इसमें इंसान का अपना नफ्स भी हो सकता है। अगर नफ्स सरकशी की तरफ लेकर जाए तो नफ्स तागूत हो गया। अगर आपका शौहर सरकशी की तरफ लेकर जा रहे हैं तो शौहर तागूत हो गया। अगर आपकी औलाद सरकशी करवा रहे हैं तो औलाद तागूत हो गई। अगर आपके वालिदैन सरकशी की तरफ बातें कर के लिए आपको उकसाते हैं तो वालिदैन तागूत हो गए। अगर कुछ माशरे के रसूम और रिवाज आपको तागूती कामों पर मजबूर करते हैं, माइल करते हैं, तो वो रसूम और रिवाज तागूत हो गए। कुछ हुक्मरान हैं जो आपसे गलत कामों के लिए ऑर्डर्स देते हैं, कवानीन बनाते हैं, वो तागूती ताकतें हो गई, तागूती हुक्मरान हो गए। समझ आ गया? तो हर वो चीज़, खा वो शौहर है, हुक्मरान है, कवानीन है, कोई ट्रेंड्स हैं, कोई रस्म व रिवाज है, कोई बरादरी है, कोई घराना है, कोई रिश्तेदार है, अगर वो आपको अल्लाह की सरकशी की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो क्या है? तागूती ताकतें। अब जाहिर है जब आप तागूती तागूत वैसे शैतानी कुव्वतें और ताकतें हुई ना, तो याद रखिएगा हमने पीछे पढ़ा था, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। तागूत से इनकार होगा तो अल्लाह पर ईमान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तागूत को भी मान रहे हो और अल्लाह पर भी मान रहे हो। तो सूरह बकरा में अल्लाह ने साफ फरमा दिया था कि वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, तागूत का इनकार होगा तो अल्लाह पर ईमान होगा। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ने कहा कि फिर फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। ऐसे बंदे ने फिर अल्लाह का मजबूत सहारा तो पकड़ लिया, वो टूटने वाला नहीं। तो हर तागूती ताकत से रिफ्रेन करना है, दूर रखना है अपने आप को, अल्लाह पर ईमान लाके खालिसतन अल्लाह के ऊपर यकीन और तवक्कुल करके अपनी जिंदगी को गुजारनी है। फिर ही हमारे हाथ में वो ताकत आएगी कि फिर अल्लाह की वो कुव्वत हमारे पास आ जाएगी कि कोई उसको फिर तोड़ नहीं सकेगा।
तो अल्लाह को ऐसा ईमान चाहिए कि सारी तागूती ताकतों से इनकार कर दिया जाए, तमाम के तमाम जिब्त से इनकार कर दिया जाए, किसी नहुसत का तसव्वुर नहीं है। और लोग क्या कहते थे, वो जो अहले किताब थे वो कहते थे यक़ूलूना लिल्लज़ीना काफ़रू, और वो अहले किताब इनकार करने वालों से कहते थे कि हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, कि ये जो इनकार करने वाले हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते और तागूती चीज़ों को मानते हैं या जिब्त को लेकर चलते हैं, ये तो ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं। कई लोग कहते हैं ये फॉरेनर जो है हमसे ज्यादा अच्छे हैं मुसलमानों से, कि उन्होंने अच्छे काम जी, वो जो दादू टोने कर रहे होते हैं, देखो ना सारे काम उनके सही हो जाते हैं। वो देखो ना, वो सारी इल्मुल आदात से सारा कुछ निकलवा के अपने काम करती है, वो तो सब चीजें ठीक होती है। सारा का सारा हमारा जो ये एलीट तबका है, हुक्मरानी तबका है, ये सब कहाँ जाते हैं? इन्हीं फ्यूचर प्रेडिक्टर्स के पास जाते हैं, इन्हीं जिब्त के मामलात को अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये ज्यादा हमें सही चीजें बता रहे हैं। हर बंदा जो है ना पागलों की तरह, ये साल कैसा गुजरेगा, फलां बंदे के लिए ये साल कैसा रहेगा, इमरान खान के लिए 2024 कैसा गुजरेगा, नवाज शरीफ के लिए कैसा, देखो ये तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही रास्ते पर है, ये तो सही चीजें, इनको पता है हर चीज। और वैसे ही लोग मानते हैं, वो तो सही इसलिए होती है क्योंकि अल्लाह आजमाता है ना। फिर वो क्यों सही होती है वैसे आप बताएं, वो क्यों सही होती है? वो जो, हाँ जी, आप देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने हर चीज को ना बहुत डिसिप्लिन के साथ बनाया है। अल्लाह ताला के हाँ हर चीज की बहुत नपी तुली तमाम चीजें मुकर्रर हैं। पूरे ये उलूम कैसे वजूद में आए हैं, साइंस कैसे वजूद में आई है, लॉज कैसे बने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज को लॉज के साथ बनाया है। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने, और फिर वो अल्लाह ताला इल्म देता जाता है इंसान को, हर चीज लॉज के साथ चल रही है, हर चीज का एक कानून है जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। अब वो उसके रमूज असरात हमें जो है ना वो नजर आते भी जाते हैं और उलूम मिलते भी चले जाते हैं जब अल्लाह हमें देना चाहता है। जब जो अल्लाह सिखाना चाहता है वो हमें पता चलता जाता है, क्योंकि अल्लाह अलीम है, उसके पास तमाम चीज़ों का इल्म है। ये बात अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। वो क्यों चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि वो एक ख़ास क्वांटिटी के साथ हो रही होती है, ख़ास नंबर्स के साथ हो रही होती हैं। अल्लाह ने हर चीज़ को शुमार करके गिन कर रखा हुआ है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, समझ आई है ना। तो वो हर चीज़ को इसी तरह साइंस, इसी तरह मैथ्स, इसी तरह ज्योमेट्री का इल्म आया है, समझ आ गई। तो अल्लाह के पास जितने भी लॉज चल रहे हैं जो अल्लाह ने बना दिए हैं, वो एक खास कैलकुलेशन के साथ चल रहे हैं, समझ आ गई। वो इल्म अल्लाह ताला देता जाता है इंसान को। अब वो रब चाहे तो उस कैलकुलेशन में चेंजेस कर दे, वो उसके हाथ में। आज ये सितारा इधर है, कल वो उधर ले जाए, उसकी मर्जी। आज हवा का दबाव का इधर प्रेशर ज्यादा है, कल वो उधर ले आए, उसकी मर्जी। आज काले बादल इधर ज्यादा है, ना बरसाए, उसकी मर्जी। हुक्म दे तो बरसेंगे, नहीं हुक्म दे तो उधर जाके बरसेंगे, उसकी मर्जी। समझ आ गई। तो हमने महकमे मौसमियात पे ट्रस्ट करना है कि अल्लाह की जात पर? अब आप बताएं। यस, ये है वो बात। अब अल्लाह ताला चाहता है कि एक इंसान, औरत के पेट में जो बच्चा है वो कैसा बन रहा है, मर्द मुअन्नस बनेगा या मुज़क्कर बनेगा, ये अल्लाह को इल्म है। अब अल्लाह ताला ने हमें, तो जब 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं तो उसके अंदर बच्चे की जेंडर पता चल जाती है। अब 5 गैब की चीजें हैं जिसका इल्म अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। और अब हम ये कहने लग जाएं कि अब तो 3D 4D अल्ट्रासाउंड्स पे सब चीजें पता चल जाती हैं कि जेंडर मेल है कि फीमेल है। अल्लाह बताना चाहता है तो पता चलती है,
اللہ نہیں بتانا چاہتا تو نہیں پتا چلتا. غلط بھی ہو جاتا 3D اب بچہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ پتا چل جائے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. سمجھ آ گئی. کئی دفعہ ڈاکٹرز 3D الٹرا ساؤنڈ پر بھی کہہ دیتی ہیں کہ جی جو ہے نا فیمیل ہے, فیمیل ہے, لیکن وہ میل پیدا ہو جاتا ہے. پوچھنا چاہیے, نہ پوچھنا چاہیے سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس میں. اگر آپ کو علم مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میل بتاتے ہیں لیکن وہ فیمیل ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں, سمجھ آ گئی. تو یہ اللہ, ایمان اس الٹرا ساؤنڈ پر نہیں ہونا چاہیے. ایمان کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ. اب آئیے آپ کو بات سمجھ. تمام کے تمام علوم جو اللہ نے دیے ہیں, اللہ جتنا دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے, وہ علوم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان پر اتنا یقین کر لینا کہ ایمان کے درجے پر آ جانا, اور ایمان اللہ سے ہٹ کر ان پر آ جائے کہ یہ ستارہ ادھر سے ادھر ہوا تھا, یہ بلی میرے سے آگے سے راستہ کاٹ کے گئی تھی, یہ کوا میری منڈیر پہ بیٹھا بول رہا تھا. سمجھ آ گئی. تو اس وجہ سے ایسے ہوا ہے, یہ غلط ہے. یہ ہندوؤں کی چیزیں یس, ہندوؤں کی بھی ہیں, اہل کتاب کی بھی ہیں, یہود نصارہ کی بھی ہیں, مسلمانوں کے اندر بھی بہت ہے. اب آگے آپ کو بات سمجھ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ علوم نہیں ہے. اللہ نے پوری کائنات کو ایک نظم و ضبط اور ایک ڈسپلن اور پوری کیلکولیشن کے ساتھ بنایا ہے, لیکن وہ جب چاہے اس کے اندر چینجز لا سکتا. کبھی تو نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دعا کا حکم ہی نہیں دیتے کہ آپ دعا کرو. سمجھ آئی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دعا کرے, اس کی دعا کی وجہ سے میں یہ چیزیں پلٹاؤں گا. دعا نہیں بدلتی مگر تقدیر کو. لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا کے ساتھ. آپ کو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں, سارا کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی فیوچر پریڈکٹ کرنے والے نے سپوز کہہ دیا ہے. لیکن اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس چیز کو یا اس ہیپننگ کو پلٹا سکتے ہیں, کیونکہ آپ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. آپ کا بلیو کس پر ہے؟ اللہ کے ساتھ. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کافر سیدھے راستے پر نہیں ہے. سیدھے راستے پر کون ہے؟ مسلمان ہے. اللہ میں ایسا ہی ایمان عطا فرمائے. جو لوگ ان جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں, انجام آگے پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو جبت اور طاغوت کو ماننے والے ہیں. لعنہم اللہ, لعنت ہے ان پر اللہ کی. ومن یلعن اللہ, اور جس پر اللہ لعنت کر دے, فلن تجد لہ نصیرا, بس ہرگز نہیں تم اس کے لیے کوئی مددگار پاؤ گے. ہم ایڈونچر پوڈ کاسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ یہ آج تو ایسا ویدر ہوگا, اور میں نے اپنا بیٹا اسکول بھیجنا, آج تو گرمی ہے, تو یہ غلط بات ہے. جی, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے. جی, کچھ بھی نہیں ہوتا. بچہ بے ہوش بھی ہو جائے. آپ کو لگ رہا ہے فیوچر, آپ کو ویدر پریڈکشن میں پتہ چل گیا کہ آج بہت گرمی ہوگی, تو اس گرمی کو توڑ کے لیے بچے کو کوئی چیز دے کے بھیجیں. اس کا کوئی آپ چھتری دے کے بھیج دیں, اس کو پانی دے کے بھیج دیں, اس کو لیمنیٹ بنا کے دے دیں, کچھ بھی آپ اس کا وہ کر دیں. سدے باپ بچے کو اسکول ہی نہیں بھیجنا بس. جیسے کہتے ہیں آج تو بارش ہے, ہاں تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے فیوچر پہ, ہاں جی بارش پریڈکٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی بارش. سمجھ گئے؟ ہاں جی, بتانا سمجھ آ گیا نا. تو جو لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان لا کے اپنی زندگی کے فیصلے ہی بدل دیتے ہیں یا فیصلے ہی کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا فرما رہا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اور لعنت کے علاوہ کوئی بھی
तुम उनके लिए मददगार नहीं पाओगे, यानी अल्लाह उनकी मदद को भी कभी नहीं आएगा, ज़ाहिर अपनी रहमत से दूर फेंक देगा। जिस पर अल्लाह की रहमत ही नहीं होगी तो उसको अल्लाह की मदद कहाँ से मिलेगी। तो जिन बातों पर या जिन आमाल के ऊपर लानत के अल्फाज कुरान पाक में आ जाते हैं वो आमाल गुनाह कबीरा होते हैं। तो आपको समझ आया ये जिब्त और तागूत क्या है? गुनाह कबीरा का अमल। सऊदी अरेबिया में भी बहुत है, हाँ जी। टर्की में कितना है? वो जो टर्किश आए हैं वो लगाई होती है दीवारों के, अपने दरवाजों के ऊपर। कितना, ये सब जिब्त और तागूत में आता है, समझा गई? कॉफी पीने के बाद वो जिस नीचे कुछ मैप बनेगा, और मैं एक दफा गई हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये कॉफी आप पिए, इसके बाद वो बड़ा मशहूर होटल है। कहाँ पर? टर्की की बात। अच्छा, कॉफी पीने के बाद अगर तो नीचे बैग बन गया चाय का आएगा जिसका ना ये हमारे एक है, ये बताएंगे कि ये क्या आपका फ्यूचर कैसा है। देखो अल्लाह क्यों, अल्लाह की बना, तो ये सब क्या है अब आपको समझ आ गया। काफी नाउजुबिल्लाह, हाँ जी, खुदा बना दिया। जो कोई प्यारी शक्ल का था या जिसके पास लग रहा था ये कोई ज्यादा लैविश सी लाइफ है उसकी, तो उसको कह दिया कि इसका तो बहुत अच्छा सब टाइम गुजर है, और जो देखा थोड़े से आम से लोग हैं इस तरह। हाँ जी, क्योंकि शिफ्ट के बाद जाहिर है इन बातों में हकीकत तो कोई है नहीं। भला कॉफी के बचने वाली कॉफी के ऊपर अगर मैप बन जाए तो उससे आप क्या किसी का कुछ एहसास करें। एमी खाम का अपना होटल चलाने के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए लोगों को बुद्धू बनाया, बेवकूफ बनाया। अल्लाह हमें इन बातों की हकीकत को समझकर इनसे बचने और लोगों को बचाने की भी तौफीक नसीब फरमाए। अम लहू नसीबुम मिनल मुल्की, क्या उनके लिए कोई हिस्सा है बादशाहत में? फइज़न, बस अगर ऐसा है तो ला युतून अन्नास नक़ीरा, अगर उनका कोई हिस्सा होता भी ना तो वो लोगों को फूटी कौड़ी भी ना देते। मतलब अगर इस तरह की चीजें हैं, अगर जो लोग जिब्त और तागूत को मानते हैं तो क्या वो खुद बहुत अमीर होते हैं? कभी ऐसे हुआ है? वो फिर वो फट्टों पे क्यों बैठे होते हैं? कर लेते हैं तो हाँ जी, वो हाँ जी, वो जो औलादे बांट रहे हैं उनके तो अपने भी बच्चे नहीं। तो यही बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या बादशाहत में उनका कोई हिस्सा है? अगर इस तरह है तो अपनी बादशाहत में, अल्लाह की बादशाहत में अपना भी कुछ हिस्सा बना लेते जी। अगर होता भी तो अल्लाह फरमाता है फिर दूसरे को फूटी कौड़ी भी ना देते। इतने झूठे, इतने हसद वाले हैं ये। अब यासुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, क्या वो हसद करते हैं लोगों से जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमा के रखा है। तो फकत यानी अब यहाँ पे उनका एक और रवैया बताया जा रहा है कि अल्लाह ने जो अपने फजल से उनको अता करके रखा है, क्या उसकी वजह से वो हसद करते हैं? तो अहले किताब किस बात पे हसद करते थे? अल्लाह ने अपने फजल से क्या अता करके रखा था? अल्लाह ने अपने फजल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की थी बनु इस्माइल के अंदर, और वो उस नबूवत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आ जाने की वजह से हासिद बन गए थे। तो अल्लाह उनके उसी हसद का तज़किरा कर रहे हैं कि क्या ये हसद करते हैं लोगों से जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से नवाज दिया है कि अल्लाह जिसको चाहे अपने फजल से नवाजे। फ़क़त आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमता, बस यकीनन हमने तो आले इब्राहीम को किताब और हिकमत भी अता की थी। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और उनको हमने आले इब्राहीम को क्या दिया था? बहुत अजीम बादशाहत भी अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी। आले इब्राहीम में से किसको अजीम बादशाहत दी गई थी? वेरी गुड, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत और किताब भी दी, हिकमत भी दी, और बादशाहत भी से भी अल्लाह ने उनको नवाजा था। फमिनहुम मन आमना बिही, और उनमें से कोई अल्लाह पर ईमान लाया। वमिनहुम मन सद्दा अन्हु, और उन्हीं में से कुछ ऐसे हो गए जो अल्लाह की राह पर आने से लोगों को रोकते थे। वकफा बिजहन्नम साइरा, तो ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह की राह पर आने से लोगों को रोकते थे, अल्लाह ने कह दिया उनके लिए जहन्नुम की भड़कती हुई आग ही उनके लिए काफी हो जाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आता जा रहा है अहले किताब यहूद और नसारा के गलत रवैये यहाँ तक अल्लाह ताला हाईलाइट करते हुए बता रहे हैं। ये तमाम रवैये मुझे और आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि हम इन रवैयों से अपने आप को बचाएं।
इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। किस चीज से कुफ्र, किस चीज का इनकार किया? बि आयातिना, हमारी आयात से इनकार किया। सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम उनको आग में डालेंगे। कुल्लमा, जब कभी, नज़िजत जुलूदुहुम, जल जाएंगी, पक जाएंगी उनकी खालें, जब आग में डाले जाएंगे। ये सारे अमाल करने वाले के हसद से हासिद बन रहे हैं कि अल्लाह ने जो अपनी फजल से उनको अता किया है उस पर भी वो हासिद बन रहे हैं। और साथ साथ बाकी जो माल हमने अभी अमाल पढ़े उन अमाल को कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तमाम अमाल करने वालों को हम आग में डालेंगे। अल्लाह की आयत से इनकार करने वाला रवैया उनको आग में ले जाएगा। और जब वो आग में जाएंगे तो उनकी आग उनके साथ क्या करेगी? उनकी खालों को पका देगी, जला देगी। जब कभी ज़ाहिर है आग पे हाथ रखेंगे तो आग तो आपके जिल्द को जलाएगी। जब जिल्द जल जाएगी तो फिर क्या होगा? हड्डियां निकल आएंगी, गोश्त निकल के क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम दूसरी जिल्द से उसको बदल देंगे। ऊपर की लेयर जो होती है ज्यादा क्यों करेंगे अल्लाह ताला? वजह देख लीजिए, अल्लाह दूसरी जिल्द से उसको क्यों बदलेंगे? लियज़ूक़ुल अज़ाबा, ताकि वो अजाब को चखें। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला। अल्लाह दूसरी जिल्द से जिल्द को बदल देंगे। ये क्यों कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? देखिए इंसान को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, अभी हमने पढ़ा ना, हर चीज को अल्लाह ने बड़ी कैलकुलेशन और बड़े तरीके से बनाया है। ये जो हमारी जिल्द है, इस जिल्द के अंदर हम 5 चीजें जो है ना वो फील करते हैं। इसकी ना उसमें आती है, सेंस में आती है। एक तो टच, इस पे हमें टेम्परेचर होता चलता है, गर्म है ठंडा है। प्रेशर पता चलता है। हम चीज पकड़ते हैं, बड़ी है छोटी है, सख्त है नरम है, इसको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने सारी चीजें कहाँ रखी हैं? ये रिसेप्टर्स हमारे कहाँ रखे हैं? जिल्द में रखे हैं। पेन भी इसी में पता चलती है। कटता है तो फौरन आपको पेन होती है, पता चलता है। मेरा ख्याल है सुई चुभने की दर्द ज्यादा होती है, छुरी लगने की दर्द ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कट जाए ना तो इतना हल्की सी पेन होती है, फिर नहीं होती। ऊपर वाली जिल्द में जब आपकी पिन अंदर जाती है ना, कोई जब आप इंजेक्शन लगवाते तो इधर आपको जल्द थोड़ा दर्द होगी, उसके बाद जब अंदर चला जाता है ना और वो आगे पीछे करते हैं या कुछ, उसमें फिर दर्द नहीं होती, क्योंकि पेन रिसेप्टर्स कहाँ पर है? प्रेशर रिसेप्टर्स कहाँ पर है? ये जो टेम्परेचर है ये कहाँ महसूस हो रहा है? स्किन पर हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जहन्नमियों के साथ क्या करेंगे? ना सिर्फ उनकी जिल्द को बदल देंगे जब वो जिल्द जल जाएगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अजाब चख सके, बल्कि हदीस बताती है कि जहन्नमियों के जिस्म बहुत बड़े बड़े कर दिए जाएंगे। इतने बड़े बड़े कर दिए जाएंगे कि उनकी कान से लेके, कान की लौ से लेके ये जो गर्दन का हिस्सा है ये 1 मील की मुसाफत होती है। और एक कान से दूसरे कान की लौ जो है ये कितनी होगी? ये 7 मील की मुसाफत। और जो जिल्द है वो 70 बालिश्त मोटी कर दी जाएगी। ये सारे रिसेप्टर्स ये जिल्द के अंदर होंगे। ये जहन्नमियों को अल्लाह जो फरमाता है ना कि खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और वो ज़िदनाहुम सईरा, अल्लाह ताला उस आग को मजीद बढ़ाते जाएंगे। अल्लाह यहाँ पर भी फरमा रहे हैं कि जब उनकी खालें जल जाएंगी, पक जाएंगी, तो फिर हम क्या करेंगे? हम बदल देंगे उनको दूसरी खालों से। क्यों? ताकि वो अजाब को चखें। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह में माफ फरमाए। क़यामत के दिन हर चीज बड़ी हो जा रही है। कान की लौ से गर्दन तक का फासला एक जगह तो आता है 700 मील या 3 दिन की मुसाफत। 1 मील नहीं है,
ایک دن کی مسافت یا 700 میل. اللہ جانتا ہے اس وقت جہنمیوں کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت پہ ڈھانپ لینا اور اپنی رحمت میں ڈھانپ کے ہم کو بخشائے حساب یسیرہ کے ساتھ اللہ جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. کھال کی موٹائی 70-42 ہو جائے گی. سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ پاؤں میں 2 جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے, اور ان کی وجہ سے انسان کا دماغ ابل رہا ہوگا. آج آپ کو سردی بہت لگ رہی ہوتی ہے, صرف ساکس پہن لیں جسم گرم ہو جاتا ہے. کتنا بڑا مظہر ہے اس بات کا کہ صرف پیر گرم کرنے سے پوری باڈی وارمتھ محسوس کرتی ہے. تو پیروں میں اگر آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے تو بھیجا ابل رہا ہوگا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. بے شک اس کا عذاب جان کا لگو ہے, چمٹ جانے والا, وہ چھوٹے گا نہیں. اسی لیے اللہ فرماتا نہیں چھوٹ سکے گا. اللہ نے سب چیزیں کرنی ہیں. اللہ ہمیں تمام ان اعمال سے محفوظ فرمائے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں, کہ کسی طرح کی بھی جبت اور طاغوت کے رویے کو بھی ہم سے بچنے والے بنے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخل سے, تکبر سے, ریا سے ہم سب کو بچا کے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو موڑ توڑ کے زومانی باتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صاف سیدھی قولوا للناس حسنا قولوا للتی ہی احسن, کہ قولوا قولا سدیدا. اللہ نے کتنے طریقے بتائے. اچھی بات کرو, صاف بات کرو, سیدھی بات کیا کرو, حسن سلوک والی بات کیا کرو, حسین بات کیا کرو, حسین طریقے سے بات کیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی باتیں کرنے والا خوش نصیب بنا. والذین آمنوا. اچھا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمتوں والا ہے. یہاں پر یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے یہاں اللہ نے کیوں کہا زبردست ہے, کیونکہ اللہ کی قدرت ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب انسان کہے کہ 70-42 موٹی کیسے ہو جائے گی کھاد, جہنمی اتنے بڑے بڑے کیسے ہو جائیں گے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک ایک جہنمی کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. 7 میل لمبا ہے احد پہاڑ. تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ عزیز, اللہ زبردست, وہ اپنے فیصلوں کو لانے کا پورا اختیار رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. جو رب دنیا میں ہمیں یہ ساری چیزیں دکھاتا ہے وہ قیامت میں نہیں یہ سب کچھ کر سکتا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف دلاتے ہیں وہیں پر امید بھی بندھاتے ہیں. ہمارے دین کا یہی انداز طریقہ ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا, لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہ ساری غیر اسلامی چیزوں سے بچ کر اپنے اوپر خالص ایمان کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ایمان لے آئے وعاملوا الصالحات, اور پھر نیک عمل بھی کرنے لگے, تو اللہ ہر ایمان عمل صالح میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایمان کو اعمال صالحہ میں بدلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان صرف قولی ایمان نہیں لاتے, پھر عمل سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ واقعی ایمان لائے ہیں. ہاں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو تو رہی ہیں, لیکن میرا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے. میں نہ جبت کو مانتی ہوں, نہ میں طاغوت کو مانتی ہوں, نہ میں ریا کرتی ہوں, نہ میں نفس کو خدا بناتی ہوں, نہ میں نے تکبر کرنا ہے, بلکہ کبریائی اللہ کی شان ہے, اسی کے ساتھ اسی کو زیب دیتی ہے, اور نہ میں نے بخل کرنا ہے. اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے نوازا, اللہ نے اگر دوسرے کو کسی فضل سے نوازا, تو میں کسی پر حسد نہیں کرتی. اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا وہ میں دنیا میں لوگوں کی خدمت کے لیے اور بھلائی کے لیے استعمال کرتی ہوں. اعمال صالحہ سے اپنے عمل کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں, اللہ کو مان کے, اللہ کی آیات کو مان کے اللہ کی ماننے والی ہوں. جب ایسے معاملات ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار,
ہم انقریب ان کو کہاں داخل کریں گے؟ جنتوں میں داخل کریں گے، باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جہاں جہنم کی آگ کا عذاب خلود فی النار تھا، ہمیشگی کا عذاب تھا، عذاب کا چکھے ہی جا رہے، اللہ ایک جلد کی جگہ دوسری جلد کو بدلے ہی جا رہے ہیں۔ یہاں پر جنتیوں کے لیے بھی معاملہ کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اللہ ہمیں جنتی بنا دے۔ رب ابن لنا عندک بیتا فی الجنہ، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل۔ صرف اکیلے نہیں بھیجے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ نے انسان کی سائیکی کا پورا دھیان رکھا ہے۔ اکیلے جا کے تو مجھے کہیں بھی مزہ نہیں آتا، کہیں بھی میں اپنی پکنک انجوائے نہیں کرتی جب تک میرے ساتھی نہ ہوں، جب تک میرے اپنے نہ ساتھ ہوں، فیملی نہ ساتھ ہو۔ تو اللہ نے فرما دیا لہم فیہا ازواج، ان کے ساتھ کیا ہوں گے؟ ان کے جوڑے ہوں گے۔ بھائی تم اکیلی چلی جاتی ہو، کہیں تمہیں سیر کرنے کا مزہ آئے گا اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ نہ ہو؟ اللہ نے کہہ دیا تمہارے ازواج تمہارے ساتھ ہوں گے۔ مرد جاتے ہیں اکیلے، ان کو سیرے کرنے کا مزہ نہیں آتا جب تک ان کی بیوی ساتھ نہ ہو۔ تو اللہ نے کہہ دیا تمہارے جوڑے بھی ہوں گے تمہارے ساتھ، اور وہ جوڑے کیسے ہوں گے؟ ازواج مطہرۃ، پاکیزہ، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی پاکیزہ لوگ ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جنتیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، جنتی خود بھی پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان کے جوڑے بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ہمارے ازواج کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ نہ صرف تمہارے ازواج ہوں گے پاکیزہ ہوں گے، بلکہ تو جنتیوں کی صفت ایک اور پتہ چل رہی ہے، پاک رہنے والے ہوں گے۔ دنیا میں بھی پاکیزگی کا اہتمام کرتے تھے، دنیا میں اپنی نظروں کی، اپنے جسموں کی، اپنے لباسوں کی، اپنے نیتوں کی، اپنی زبانوں کی، تمام مالوں کی، اپنے اخلاق کی پاکیزگی کا اہتمام کر کے چلتے تھے۔ تو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی پاکیزہ لوگوں کو جنت میں بھی ساتھی رکھے گا، وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں۔ ذِلًّا ذَلِيلًا کس کو کہتے ہیں؟ گھنے سائے۔ کیسے گھنے سائے ہوں گے؟ جنت کے سائے بڑے گھنے ہوں گے۔ ذِلًّا ذَلِيلًا، سایہ گھنا جنت کا ایسے ہوگا کہ اس میں آتا ہے مدھامتان، سورہ رحمان میں آتا ہے، وہ ایسے گھنے سائے ہوں گے کہ اتنے گھنے ڈارک گرین، کہ اتنے لمبے لمبے سائے ہیں وہ، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سوار، گھڑ سوار اگر سواری کرے گا نا تو 1 مہینہ وہ چلتا رہے گا، وہ سایہ ختم نہیں۔ ایسے گرین، ڈارک گرین، لش گرین۔ آپ جاتے ہیں نا کہیں گرین، ایک تو فریش بیوٹی اچھی لگتی ہے، لیکن جہاں گرین ڈارک، اور وہاں پہ نتھیا گلی کیوں پسند آتی ہے سب کو اتنی؟ نتھیا گلی کے درخت دیکھیں آپ لوگ کیسے گھنے گرین کلر کے درخت، وہ ہے گرین، ڈارک گرین، ذلًا ذلیلا، گھنے سائے۔ اور جب اتنے گھنے ہو کہ سورج بھی جب وہاں پڑتا ہے تو وہ درخت ان کو obstruct کر دیتے ہیں سورج کی ریز کو، اور سائے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور سب گرمیوں میں بھی نتھیا گلی میں آپ کو ٹھنڈک کی نظر آ رہی ہے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے تم کو۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے نکل کر ہمیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اب ایک کام کر لو۔ اب کام کیا کرنا ہے؟ تم نے دیکھ لیا غلط رویاں جو تھی تمہیں بتا دی گئی، ان ساری غلط رویوں سے بچ کر رہنا، ایک اللہ کی ذات پر خالصتاً اس کے اوپر ایمان لا کے اپنے سارے معاملات کرو گے تو دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی تمہاری سدھر جائے گی۔ اب تم اپنی دنیا کے معاملات چلانے کے لیے اگر کسی کو منتخب کرنے لگو، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے کسی کو تم سلیکٹ کرنے لگو، تو پھر کیا کرنا؟ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اب ایک کام کر لو، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہ کہ تم ادا کر دو امانتیں طرف ان کے اہل کے،
यानी अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो। ओहदा उसी को दो जो तुम्हें उस ओहदे के काबिल लगता है। अगर तुमने एक डिस्पेंसरी चलानी है तो डिस्पेंसरी एक कंपाउंडर नहीं चलाएगा, कौन चलाएगा? डॉक्टर चलाएगा। अगर तुम एक टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो तो वो टीचिंग इंस्टीट्यूट एक आम सा मैट्रिक पास नहीं खोलेगा, कौन खोलेगा? जो अहल है, जो टीचिंग की तालीम की अहलियत रखता है कि वो दूसरों को तालीम दे सकता है। वो छठी क्लास के पास बच्चे को तुम वहां का लीडर नहीं बना दोगे, उस्ताद नहीं बना दोगे। तो गोया अहले अमानत जो उस काबिल है उस ओहदे को कबूल करने के लिए, उसी को वो ओहदा देना। समझ आ गया? तो अमानतें कौन कौन सी होती हैं जो बताई जा रही है कि उनके अहल को ही अमानतें देना। ओहदा अमानत, मशवरा अमानत है। अमानतें बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। देखिए अमानत सबसे पहली तो ये है कि हम जिस तरह आम तौर से देखते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा वाकई मेरी अमानत का ख्याल रखेगा तो उसके पास अपना पैसा, माल, जेवर सब कुछ रखवा सकते हो। अब तुम्हें पता है कि एक बंदा ख्याल नहीं रखेगा तो तुम उसको मत दे के जाओ। अपने माल नादान लोगों के हवाले मत करो, कुरान में हुक्म आता है। अब तुम अपने माल, तुम 5 लाख रुपए अपने मुलाजिम को पकड़ा दो और फिर तुम कहो कि वो तो लेके भाग गई या भाग गया, तो उसमें किसका कसूर है? अद्दुल अमानाती इला अहलिहा, अमानतें उन्हीं के सपोर्ट करो जो उसके अहल हैं। तुम्हें पता है कि उसका ईमान डगमगा सकता है, वो 5 लाख रुपए दे के राल टपकेगी, हो सकता है कि वो भाग जाए, हो सकता है वो गायब हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने क्या, या तुम इतना जेवर उनके भी सामने पकड़ा के चले जाओ और बाद में कहो जी हमारी तो जी डाका पड़ गया, हमारी तो जी मुलाजमा उसके साथ मिली हुई थी। भैया आपने क्यों उसके हवाले किए थे, क्यों सपोर्ट किए थे? तो ये कि अपने माल, अपने जेवरात, अपनी चीजें उन्हीं के हवाले करो जिनको तुम उसका अहल समझते हो, जो अमीन है। अमानतदारी का हुक्म भी दिया जा रहा है यहाँ पर। हदीस में आता है ला दीन लिमन ला अहद लहू, उसका कोई दीन नहीं जो वादे का पास नहीं करता, लेकिन ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उसका तो कोई ईमान ही नहीं है जो अमानतदारी का पास नहीं करता। ईमान से चैलेंज कर दिया गया है। अमानतदारी ईमान होने के लिए लाजमी वस्फ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान मजबूत और स्ट्रांग हो जाए तो इस सिफत को अपने अंदर लाजमी पकड़ लीजिए। अमानतदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बनाए गए थे, नबी बनाए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सिफत से मशहूर थे? सादिक और अमीन। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। कितनी जरूरी है ना ये बात, अमानतदारी का पास। तो अमानतें ना सिर्फ ये हैं कि अगर कोई आपको देता है तो आप उसको देख, मतलब अगर आप किसी को देते हैं तो आप देखें कि आप उसको देने के वो इस काबिल है कि आप उसके पास रखवा रहे हैं। दूसरा ये कि अमानतें सुपुर्द कर दो अहले अमानत के। जिसने अमानत दी है, जिसकी अमानत थी उसकी अमानत उसको लौटाओ। दोनों बातें बताई जा रही हैं। अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो, जिसकी अमानत थी वो अमानत उसको सुपुर्द कर दो। वाकया मैंने आपको सुनाया था ना कि हज़रत उम्मे सुलैम का जो बेटा था अबू उमैर, उसका इंतकाल हो गया। तो वो गए हुए थे हज़रत अबू तलहा सफर पर, वापस आए तो आके पूछा बच्चा कैसा है। उन्होंने क्या कहा था कि सबको मना कर दिया था, किसी को ना बताना कि बच्चे का इंतकाल हो गया। 6 साल का बच्चा था। उसको कफना के दूसरे कमरे में रख दिया। शौहर आए, उन्होंने तकाजा भी किया, खाना शाना खाने के बाद जिस्मानी ख्वाहिश का तकाजा किया, वो भी पूरी कर दी। और फिर उनसे पूछा ये बताएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आपको एक अमानत दे,
नहीं, कोई अगर आपको अमानत दे और वो अपनी अमानत वापस मांगे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने क्या कहा? अंतु अद्दुल अमानाती इला अहलिहा। जाहिर है जिसकी अमानत है उसको सपोर्ट कर दूंगा, उसकी अमानत जिसने दी है उसको उसकी अमानत दे दूंगा, वही करना है। तो उन्होंने क्या कहा था? अल्लाह ने आपको एक अमानत दी थी, वो उसने मांग ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि ऐसे अपने शौहर को कायल किया। जब शौहर ने आते ही पूछा था ना, अबू उमैर कैसा है, उन्होंने कहा था कदरे सुकून में। जाहिर है दुनिया के से निकल के अल्लाह की तरफ पहुंच गया, जन्नत में सुकून में ही था, बीमारी से निकल गए थे, सुकून की हालत में आ गए थे। तो ये है वो तरीका कि जिसकी अमानत थी उसने मांग ली। तो जब भी अल्लाह सुब्हाना ताला आपको ये रिश्ते देता है, प्यारे रिश्ते देता है, औलादे देता है, शौहर देता है, वालिदैन देता है, जितने भी आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में रिश्ते अदा करवाए हैं, ये उसकी अमानत है। जब तक देता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो मांग लेगा तो क्या है? उसकी अमानत थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम भी अल्लाह के हैं और हमने भी उसी की तरफ पलट कर जाना। अल्लाह तूने अमानत दी थी, जब तक दी थी, औलाद अल्लाह के ले अल्लाह के पास चले जाए, क्या कहना है? अल्लाह तेरी अमानत थी, जब तक तूने दी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अपना फ़र्ज़ अदा किया। अल्लाह सुब्हाना ताला अब तेरी रज़ा पर मैं राज़ी हूँ। समझ आ गई? तो ये भी बताया जा रहा है कि उसकी अमानत जो भी है वो उसके अहल के सुपुर्द कर दो। इसी तरह दुनिया में आपको जो भी कोई चीज़ देता है, लोग मांग लेते हैं चीज़ें, कई दफ़ा आपसे मांग लेते हैं क्या नाम है इसका, आपके पास कुछ आती है, कोई चीज़ आती है, या आपने उससे कोई चीज़ मांगी है किसी से भी और वो आपसे चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। आपकी पूरी कोशिश के बावजूद भी वो टूट जाए या ख़राब हो जाए, अव्वल तो क्या करना है? अमानत का इतना ख्याल रखना है कि अगले की दी हुई अमानत को वैसे ही लौटाया जाए। लोग किताबें मांग लेते हैं और फिर ऐसी हालत में वापस करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल पेजेस अलहदा हो रहे थे। कपड़े लेते हैं तो इतने गंदे स्टेन्स वाले करके, गंदे स्मेली वो वापस करते हैं। आपने तो साफ सुथरे लिए थे तो फिर आप उनको ड्राई क्लीन करा के साफ करके वापस करें। शॉलें मांग लेते हैं लोग, जूते मांग लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लोग एक दूसरे से मांगते हैं। अगर मांगते हैं ज़रूर दें आप उनको, लेकिन अगर वो आपने ली है किसी से तो क्या करना है? उनको रिटर्न करते वक्त उसी हालत में करना है। वाक़या सुन लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक हज़रत आयशा के हुजरे में थे आसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक हज़रत सफ़िया ने गालिबन हलवा बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन भेजा या कोई खाना बनाकर भेजा। तो हज़रत आयशा को गुस्सा आया, उन्होंने हाथ मार के हाँ जी वो जो प्याला था उसको मारा हाथ मुलाजमा के हाथ पर, तो वो प्याला नीचे गिरा और टूट गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से वो उठाने लगे किरचियाँ, तो परेशान हो गई, वो कहने लगी मेरे से तो गलती होगी। ज़ाहिर गुस्सा आया था, गुस्से के बाद जब होश आएगी ये क्या मैंने कर दिया, तो फ़ौरन कहने लगी या रसूलल्लाह अब इसका कफ़ारा क्या होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? वैसा ही प्याला और वैसे ही खाना। किसी ने तुमको अमानत भेजी है ये प्याले में, तो अब क्या करोगे? वैसा ही लेके भेजो। समझ आई? तरीका तो यही है। ये तो चीज़ों की अमानतें होंगी। आप जेवरात लेते हैं, ख़राब करके भेज देते हैं। इसमें रेंट के घर भी आते हैं जी, रेंट के घर तो आप उसकी कीमत देते हैं वैसे, लेकिन ये भी उसी में, ये भी अमानत ही आप रखते हैं उनकी। मतलब तोड़ फोड़ कर दें आप, तो ये अमानत आपने उनसे लिया, बेशक आप उसका पैसे दे रहे हैं, लेकिन आप इख्तियार नहीं है कि आप उनकी चीज़ों को ख़राब करें। तो समझ आ गई आपको? अच्छा, एक इसी तरह से कोई माल हो गया, जेवर हो गया, और कोई ओहदा और जिम्मेदारी भी मैंने आपको बता दिया। जी, अब अगली अमानत जो है वो क्या है? राज। राज भी एक अमानत है। और अल मजालिसु बिल अमानती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलिस भी अमानत के साथ। मजलिस, आप किसी मजलिस में गए, आप किसी घर में गए हैं, आप किसी महफिल में गए,
اس کے اندر جو بھی بات چیت ہوئی ہے آپ کبھی بھی وہ جا کر دوسروں کو سامنے اس طرح سے منظر کشی نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ وہ دیکھ رہا ہے. جتنی بھی باتیں ہوئی ہوں لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر ویڈیوز بنا کے اور جا کے دوسروں میں بتاتے ہیں, فیس بک میں ڈالتے ہیں. المجالس بالامانت, ایک محفل کے اندر جو بھی باتیں ہوئی ہیں ان کو وہیں پہ ختم کر کے اٹھنا ہے. اب آپ جا کے دیکھیں, اب آپ جب یہاں پر موجود ہیں, ہم 10 لوگ موجود ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کسی کانٹیکسٹ میں, پیچھے کون سی بات چل رہی تھی اور کسی نے کوئی بات کہی, اس کی وہ بات پکڑ کے جا کے پوری کی پوری ہائی لائٹ کر دی جائے گی یا کوٹ کر دی جائے گی اور بات کچھ سے کچھ بن جائے گی, حالانکہ وہ ویسے نہیں ہوتی. تو اس لیے جو باتیں یہاں پر ہوں یا کسی بھی مجلس یا محفل میں ہوں وہ امانت کے ساتھ, ان کو خواہ جا کے دوسری جگہوں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. آپ نے میرے سے باتیں کی, آپ نے 4 لوگوں نے آپس میں باتیں کی, یہ کر رہی تھی, اب یہ جا کے آپ لوگ بتا دیں جی وہ وہاں پہ تو فلانی ایسے کہہ رہی تھی ایسے کہہ رہی تھی. یہ امانت ہے جو آپ نے ساری باتیں سنی تھی, ان کو یہیں پہ دفن کرتے ہیں. ہم فیملیز میں جاتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, گیٹ ٹوگیدرز میں جاتے ہیں دعوتوں میں فیملی کی, جو بھی وہاں پر ہوا اس کو کوئی ضرورت نہیں بعد میں ڈسکس کرنے کی, کیونکہ جو وہاں پر ہو رہا تھا اس کا سینیریو کچھ اور تھا. جو بعد میں دوسرا بندہ سنے گا یا دیکھے گا وہ علیحدہ, وہ اس کو دوسری طرح پرسیو کرے گا. جو وہاں پر آیا وہ ٹھیک ہے, اس نے دیکھا سب کچھ اس کے سامنے ہوا, جس نے نہیں دیکھا خواہ مخواہ میں دوسروں کو جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. المجالس بالامانات, یہ حدیث کے الفاظ آپ کو بتا رہے ہیں, یہ بھی امانت ہے. آپ نے کبھی بھی کسی سے جا کے بات نہیں کہا, آپ اچھی بات قرآن اور حدیث کی بات سن کر جائیں گے ضرور بتائیں, لیکن مجلس میں محفل میں فلانی نے ایسے, یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کسی ایسے شخص کو کہ جو تجھ سے بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, تو اس کی وہ بات ایک راز ہے جو تیرے پاس امانت ہے. آگے بات سمجھ, تو راز بھی ایک امانت ہے. شوہر آپ سے تنہائی میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے. آپ کی بہن آپ سے کوئی بات کرتی ہے یا کوئی بھی ساتھی دوست فیملی میں کوئی بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے, اور بات کرتے وہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی دیکھ رہا ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ لگے اس بات کا, وہ بات آپ کے پاس ایک امانت ہے. لیکن جیسے ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو دوسروں کی کوشش ہوتی ہے اور یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی, ساروں کو پتہ چلے. ہاں جی, لیکن اتنی ہی بات کافی ہے کہ اگر وہ دائیں بائیں دیکھ کے آپ کو کوئی بات سرگوشی میں بتا رہا ہے تو وہ امانت ہے. آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے. اور یہ بات اتنا تو ہمیں ول پاور میں اسٹرانگ ہونا چاہیے نا, کہ اگر کوئی کہے ہی کہ بھئی تم پکا وعدہ کرو کہ تم نے یہ بات آگے نہیں بتانی, پھر تب وہ ضرور ہی آگے بتائی جائے گی. بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ کسی نے مجھ سے کوئی بات کی ہے تو کیپ یور ماؤتھ شٹ, سیلے زبان, کیا ضرورت ہے کسی کی بات کسی اور سے کرنا. یاد رکھیے پیپل ڈسکشن چھوڑ دیں دنیا زندگی میں سے. آپ پیپل ڈسکشن چھوڑیں گے نا, لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑیں گے نا, زندگی آسان ہو جائے گی. بہت زندگی لٹرلی آسان ہو جائے گی. آپ کے زبان کے بہت سے فطروں سے خود بخود بچ جائیں گے. لوگوں کو خاموشی, اپنی زبانوں کو سی لیجیے. قد صمت نجا, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا, نجات پا گیا جس نے خاموشی اختیار کی. تو یہ بات بھی اپنی پلے سے باندھ لیجیے. اب وہ لوگ, ہاں جی, اگلی جو اس کے اندر چیز آتی ہے امانت میں وہ ہے ووٹنگ. ووٹ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, یعنی عہدے اقتدار کے لیے اگر تم حکومت کے لیے کسی کو الیکٹ کرنا چاہتے ہو, ووٹنگ میں اپنا ووٹ استعمال کر کے کسی کو سلیکٹ اور الیکٹ کرنا چاہتے ہو, تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یأمرکم, بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. تو گویا ووٹ استعمال کرنا بھی اللہ کا حکم ہے. اس ووٹ کو استعمال کرنا ہے کس کے لیے؟ الی اہلھا,
جو اس کے عہدے کے اہل ہیں، تو اس کو ایسے ہی شخص کو منتخب کرو جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین حکمران ثابت ہو سکتا ہے. کسی ادارے کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی اسکول میں الیکشنز ہو، کسی کالج میں ہو، کہیں پر بھی کسی آرگنائزیشن میں بھی الیکشنز ہو رہے ہوں، حکمران کس کو منتخب کرنا ہے؟ جو اس عہدے کا اہل ہوگا. اگر نہ کرو اسی کو تو آپ اللہ کے حکم کو فالو نہیں کر رہے. اپنی سمجھ کے مطابق. ان اللہ یأمرکم، اللہ کا حکم ہے. پوری مانو. یس، یہ ووٹ بھی امانت ہے. اگر آپ اس امانت کو صحیح جگہ پہ نہیں استعمال کر رہے تو پھر آپ اللہ کے ایک تو حکم کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ امانت میں کوتاہی کا معاملہ کر رہے ہیں. جیسے ہمارا ووٹ اسلام آباد لوگ جا کے آتے ہیں. جن کے آپ دیکھیں، میں ہاسپٹل میں ہوتی ہوں اور میرا جو اسٹاف ہے، جب الیکشنز آئے تھے اپنے اپنے شہروں میں جا کے ووٹ کاسٹ کر کے آئے تھے. ایون کراچی والے کراچی جا کے کر کے آئے تھے. جی، یہ ایک امانت ہے جو اللہ نے دی. یا پھر آپ اپنا ایڈریس چینج کروا کے اپنی ووٹنگ اپنے ہی علاقے میں کروائیں. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ایک امانت ہے. اس کے لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو اپنی امانت کا پاس نہیں کرتا. کتنی چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کے حوالے سے ہمیں یہاں پر سمجھائی ہیں. اور اللہ نے آگے ہمیں بتا دیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم اتنا بڑا مرتبہ اگر تمہیں ملا ہے کہ تم فیصلہ کرتے ہو لوگوں کے درمیان، تو کیسے فیصلہ کرنا؟ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پھر فیصلہ کرنا. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بہت اچھی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اب وہ شخص جو امانتوں کا خیال نہیں رکھتا، اس کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ ایک شخص جو شہید ہوا تھا لیکن اس نے ایک امانت میں خیانت کا مرتکب ہوا تھا، تو قیامت میں اسے جہنم میں وہ امانت رکھی ہوئی دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جاؤ، جا کر وہاں سے اس امانت کو لے کر آؤ اور اس کے مالک کے سپرد کر دو. تم نے امانت میں خیانت کی تھی تو جاؤ اور جا کے اب یہ امانت لے کر آؤ جہنم سے اور اس کے مالک کے سپرد کرو. وہ شخص جہنم میں جا کر وہ امانت اٹھا کر لا رہا ہوگا تو وہ گر جائے گی، پھر وہیں پہنچا دی جائے گی، اور وہ پھر جائے گا اور لے کر آ رہا ہوگا، وہ پھر جب گر جائے گی، اور پھر یہی ہوتا رہے گا. وہ لا رہا ہوگا، وہ گر جائے گی، پھر وہیں پہنچا دی جائے گی، وہ پھر جائے گا جہنم میں. بس یہی ہوتا رہے گا. وہ امانت اب اس کے پاس پہنچا نہیں سکے گا اور اس کو حکم ماننا پڑے گا کہ لے کر آؤ اور لا کے اس کے امانت جس کی تھی اس کو دے کر آؤ. حضرت علی کا بھی واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہجرت کا وقت جب کہ جان جو ہے وہ جوکھوں پر لگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کا جو ہے وہ پلان کر لیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، صادق اور امین تھے. پتہ چل گیا تھا کہ جی یہ قتل کا پلان ہے، اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ راتوں رات یہاں سے ہجرت کر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بھاگ جاتے، لیکن ایک ہی فکر تھی کہ یہ جو امانتیں اب میرے پاس ہیں یہ کیسے ان کے سپرد کر کے جاؤں. اور اس کی سپردگی کے لیے سب سے محبوب ترین، عزیز ترین اور اپنے خاندان کے بہترین شخص کے سپرد کر کے گئے تھے. اور وہ کون تھے؟ حضرت علی. یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے میں کسی غلام کے سپرد کر دیتا ہوں یا فلانے کو بلاتا ہوں. اسی کے سپرد کیا جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ جا کے پہنچا کے آئے گا. اہل امانت کے سپرد. ان کو یقین تھا کہ حضرت علی کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، چاہے جان جوکھوں پہ لگ جائے، یہ امانتوں کو امانت جن کی امانتیں ہیں ان کے سپرد ہی کر کر آئیں گے یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ہر ایک کو جانی دشمنی کے باوجود بھی ان کی امانتوں کو ریٹرن کرنے کا پورا بندوبست کیا تھا. ہمارے یہاں کوئی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا.
اگر کسی نے کچھ رکھوایا آپ کے پاس تو بس ٹھیک ہے، جب مانگے گا تو دیکھیں گے. لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں برتن بھجواتے ہیں کھانا وغیرہ دے کر، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واپس بھی کرنے ہیں کہ نہیں. اگر خود کچن میں نہیں بھی جاتے، آپ کے سرونٹس کچن میں کام کرتے ہیں، تو خدا را کچھ دنوں کے بعد کچن میں جا کے یا اپنے برتنوں کو دیکھ لیا کریں، یا اپنے سرونٹس کو بتا دیں کہ جی یہ برتن جو ہے کسی اور کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کرو، تاکہ پتا ہو کہ یہ کسی کے ہیں اور ان کے گھر واپس پہنچانے. اس کو استعمال کرنے کا بھی حق نہیں. بالکل آپ ان کو نہیں کر، اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے نہ استعمال کریں کہ وہ ٹوٹ جائیں یا وہ خراب کر دیں. سمجھ آئی؟ تو آپ نے چیز بھجوائی ہے وہ اس میں ڈالیں گے اگلے کے گھر میں. ہاں جی ہاں جی، وہ اگلا یہی ہوتا ہے، وہ دوسرے کے گھر سے آئی ہے، وہ بھجوا دی دوسرے کے گھر میں اور پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ امانتیں ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یاد رکھیے یہ وہ عمل تھا جس عمل کو کرنے کی وجہ سے ایک وہ شخص تھا. جنگ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک شخص تھا، آپ وہ بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، چلو میں ذرا بس سالار سے ملتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے ان کا معاملہ. تو وہ شخص گھومتا گھومتا جو ہے نا وہ پوچھتا پہنچا جی آپ کے سپر سالار کون ہے، یعنی لیڈر آپ کے کون ہے. تو بتایا گیا کہ جی آپ ادھر چلے جائیں، ادھر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں سیدھا، نہ کوئی دربان تھا، نہ کوئی محافظ، نہ کچھ، وہ سیدھا اندر گھس گیا. بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑے لشکر کا جو سربراہ ہے اس نے کوئی پروٹوکول نہیں ہے اور میں آرام سے اندر ان کے پاس آ گیا ہوں. جا کے ساری انہوں نے بات چیت کی، دین کو سیکھا، پوچھا، اور پھر بولا آپ کیا کریں گے اگر میں آپ کا دین قبول کر لوں؟ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنا دینی بھائی بنا لیں گے. اچھا پھر اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا تو پھر میں آپ کے ساتھ میں ایمان لے کے آ جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ ایمان لے کر آ گیا. پھر وہ کہنے لگا کہ یہ میری جو بکریاں ہیں یہ میں نے کسی سے امانت لی ہوئی ہیں، تو میں ان بکریوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل جاؤ اور پہلے ان کو بکریوں کو حوالے کر آؤ، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلے تمہارے پاس جو امانت ہے نا اس کو چھوڑا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنے مالکوں کے پاس جو ہے وہ چھوڑ کے آ گیا. مالکوں کے پاس ان بکریوں کو امانت پہ جو لے کے چروانے نکلا تھا وہ چھوڑ کر واپس آیا تو جنگ کا بازار گرم تھا اور ایسا جنگ میں شامل ہوا کہ اس میں شہید ہو گیا. کسی کو نہیں پتا تھا یہ کون شخص ہے، یہ کیا کون ہے. تو جب جنگ کے بعد لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے نا تو صحابہ کرام پہچان نہیں رہے تھے یہ کون شخص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اسود رائی، یہ تو اسود رائی ہے کہ یہ کالا چرواہا. اسود کالے کو کہتے ہیں، چرواہا رائی کو. ٹھیک ہے، یہ تو کالا چرواہا ہے، نام بھی کسی کو نہیں پتا. اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تسنیم سے وہ غسل دیا اور اس کو شہادت کا درجہ مل گیا. اور یہ وہ شخص تھا جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی. کس وجہ سے اس کو شہادت مل گئی تھی؟ امانت کی وجہ سے، امانت کی پاسداری کی وجہ سے. نام تو نہیں تھا اس کا، نام تو تھا ہی نہیں. کالا چرواہا مطلب یہ تو ایک کالے رنگ کا ایک چرواہا ہے. یہ نام اس کا تو کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا. اسی طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا معاملہ کیا تو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں مانگی حضرت عثمان بن طلحہ سے کہ آپ اس کی چابیاں دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانا تھا اور جا کے بتوں کو توڑنا تھا. تو حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا. نہیں، میں نہیں چابیاں دوں گا، ہمارے خاندان کو ملی ہوئی یہ چابیاں، ہم چابیاں نہیں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی دوبارہ کیونکہ فتح ہو چکا تھا مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لیڈر بن چکے تھے. تو حضرت عثمان بن طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ چابیاں میں آپ کو امانتاً دیتا ہوں. سمجھ آیا؟ انہوں نے دیتے وقت کہا یہ چابیاں میں آپ کو امانتاً دیتا ہوں. گویا آپ یہ لے لیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن یہ امانت ہے آپ کے پاس
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमानत का भी पास रखा और हज़रत उस्मान बिन तलहा को सारा मामला करने के बाद वो चाबियाँ उन्हीं के सुपुर्द कर दी। वो डर रहे थे कि ये चाबियाँ हमसे निकल जाएंगी, हमारी तो नस्ल दर नस्ल ये चाबियाँ हमारे पास थी, और आज भी हज़रत उस्मान बिन तलहा के ख़ानदान और नस्ल में वो चाबियाँ उन्हीं के पास हैं। ये है अमानत दारी का पास। ऐसे मामलात होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही मामलात करने की भी तौफीक अता फरमाए। जी, किसकी सिफ्त होती है अमानत में खयानत करना? मुनाफिक की। वेरी गुड। अमानत में खयानत करना मुनाफिकीन की सिफत है। अगर अपना अपना मुहासबा करके देखें, अगर तो आपके अंदर कोई ऐसी बात आ रही है कि मैं अमानत का ख्याल नहीं रखती, तो उसकी क्या अलामत है? ये कि किस बात की अलामत है? मुनाफिकत की अलामत है। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनल निफाक़ी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़बी व आइनी मिनल ख़यानती। आँख की खयानत से भी पनाह मांगी जा रही है। आँख की खयानत से भी। आँख की खयानत। आँख की खयानत कैसे करते हैं? अलबुरी। वेरी गुड। बुरी बद नजरी से। और ये जो बुरी चीजों को देखना, यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, वो सारी नजरें झुका लो जो जिन चीजों पे पढ़ के तुम्हारे अंदर गलत जज्बात आ सकते हैं। मर्दों को भी हुक्म है, औरतों को भी हुक्म है। आईनी मिनल खयानती। अल्लाह में आँख की खयानत से भी महफूज फरमाए। अहले अमानत बताना आपने। हाँ जी, क्या बताना? हाँ जी, बस इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं कि इन्नल्लाह काना अलीम समीअम बसीरा। याद रखना अल्लाह ताला सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। हर अमल जो तुम कर रहे हो, हर बात जो तुम बोल रहे हो, अल्लाह सुब्हाना ताला की नज़र में भी है, अल्लाह की सुनवाई में भी है और अल्लाह के इल्म में भी है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब को माफ़ फरमाए। जहाँ कोई गलतियाँ हमसे होती हैं, अल्लाह ताला उन गलतियों से भी हमें महफूज फरमाए और मज़ीद गलतियाँ करने से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। और जो गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं, अल्लाह उन गलतियों पे सर पे नज़र करके हम सब को मग़फ़िरत कुल्ली अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब ये हमने जो है आज का टॉपिक आखिरी जो आ रही थी बात, वो इंशाल्लाह अगले उससे क्लास में हम कर लेंगे। अगले से रुकू की आखिरी आयत है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा टाइम अभी रह गया था, तो चूँकि अशरा ज़िलहज्जा आज से शुरू हो जाएगा, तो लिहाजा अशरा ज़िलहज्जा के हवाले से करने के जो काम है उसके में तो किसी ने मुझे कहा था मेरी क्लास में से कि आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा कि हम क्या करें। तो याद रखिएगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को इन 10 दिनों के अंदर की गई हुई हर नेकी तमाम नेकियों से ज़्यादा पसंद है। यानी कोई इबादत ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला को इतनी महबूब हो जो इन 10 दिनों में की गई इबादत से जो है वो ज़्यादा महबूब है। तो इन 10 दिनों में हर किस्म की इबादत का हुक्म भी है, करना भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी करते थे और करवाते भी थे अपने पूरे अहले खाना से। कुरान में अल्लाह ताला ने 10 दिनों की और 10 रातों की जहाँ कसम खाई ना, वल फजरी वल यालिन आशर व जुफ्ती वल वतर, है ना। अल्लाह ने जहाँ 10 दिनों की 10 रातों की कसम है, तो वो कौन सी है? वल आशरी वल यालिन आशर कौन सी है? ये 10 रातें, ये जिलहज की 10 रातें, ठीक है। और जुफ्त और ताक भी क्या है? जुफ्त और ताक भी मुताद्दिद डिफरेंट अहादीस के हवाले से हमें पता चलता है कि ये 9 जिलहज्जा यानी यौम अरफा, 10 जिलहज्जा यौम जो ईद उल अज़हा का है, यौम नहर, और कुछ लोग कहते हैं यौम तरविया भी इससे मुराद है, जो बाद के 12-13 जो जिलहज होते हैं। तो हर तरह से जहाँ से भी हम अहादीस को पकड़ेंगे तो ये जिलहज के ये वो दिन है जिसके अंदर इबादत करने का हुक्म है, ठीक है। कौन सी इबादत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है कि तकबीर, तहलील और तहमीद
जिक्र, अल्लाह का जिक्र, सही है। और अल्लाह का जिक्र, बोला जिक्रुल्लाह अकबर, सबको पता है अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तुम रोज़ा रखते हो, हज करते हो, नमाज पढ़ते हो, जो भी तुम इबादत करते हो, किसका अजर सबसे ज़्यादा है? उसका जो जिक्र सबसे ज़्यादा करता है, जो जिक्र सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं? वयस्कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, इन हज के मालूमात यानी जो अय्याम आपको मालूम है, इन अय्याम में क्या करो? अल्लाह का नाम का जिक्र करो। तो अल्लाह के नामों का जिक्र करें, जितना ज़्यादा अल्लाह के सिफाती नामों को पढ़ सकते हैं, हाँ जी। और वो जो तीसरा कलमा है उसमें तो तस्बीह, तहमीद, तहलील तमाम चीज़ें आ जाती हैं, हाँ जी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब इसी में आती है। तौबा करें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल, कुरान करीम की तिलावत, नमाजों के अंदर रातों का क़यामुल लैल, रोज़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 तारीख तक रोज़े रखा करते थे और रातों को क़यामुल लैल किया करते थे। 10वें ज़िलहज जिस दिन ईद होती है उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के गोश्त से तनावुल फरमाते थे और फिर खाते थे। फजर जो ईद उल फितर है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा खा के नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन ईद उल अज़हा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर कुछ खाए नमाज के लिए जाते थे और कुर्बानी के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गोश्त से अपना रोज़ा इफ्तार करते। तो इतना ही रोज़ा होता है 10वें दिन का, समझ आ गई। और सबसे बड़ी चीज़ अगली क्या है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, क्योंकि लन तनालुल बिर्रा इल्ला तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है अगर वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे तो फिर तुम नेक नहीं बन सकते, ठीक है। और हमने नेकी की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि नेकी ये नहीं है कि तुमने चेहरे मगरिब की तरफ कर लिए या मशरिक की तरफ कर लिए कि बस नमाजें या नफिल पढ़ते चले जा रहे हो या बस कुरान ही पढ़ते जा रहे हो, बल्कि नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, वो ईमान लाने के बाद आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, है ना। तो साइलीना व फिर रिकाब, तो ये 5 कैटेगरीज बताई हैं कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने के लिए माल खर्च करें। जहां हम रमज़ान मुबारक में करते हैं वहां हम ये इन 10 दिनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करना है। और इसके अलावा बहुत बड़ा सरमाया माल खर्च करने के हवाले से कुर्बानी है, कुर्बानी करना, ठीक है ना। वैसे घर के अंदर कुर्बानी की एक शख्स जो कफील होता है अगर वो कर देता है तो आपकी तरफ से कुर्बानी हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कर लेते थे तो सारे अज़वाज की तरफ से हो जाती थी। ये नहीं था कि अज़वाज अपनी कर रही हैं और वो खुद अपना कर रहे हैं। लेकिन अगर साहिब निसाब हैं तो कुछ उलमा का ये भी फतवा है कि अगर आप साहिब निसाब हैं और आप ज़कात आपके ऊपर वाजिब है तो फिर आप अपनी खुद भी कुर्बानी दे दें। ना भी दे तो कोई हर्ज नहीं, दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने माल ही खर्च करना है ना। अल्लाह तुम्हारा खून या गोश्त नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों का तक़वा दे। तो इस तक़वा को करने के लिए, अल्लाह को दिखाने के लिए कुर्बानी ज़रूर करें, चाहे आपके शौहर भी कर देते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें चाहिए कि हम कुर्बानी का कोई हिस्सा ही डलवा दें चलें, लेकिन ज़रूर अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ कुर्बानी में डालें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगला काम जो है वो ये है कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते और नहीं इस्तिताअत रखते कि वो कुर्बानी करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे लोग भी आए जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हुक्म दिया था और मशवरा दिया था कि तुम ईद वाले दिन यानी कि जो ईद की नमाज जब होती है तो उसके बाद तुम अपने जो है ज़ेरे नाफ के बाल साफ कर लेना, मुच्छे को कतरवा लेना और तुम अपने नाखून काट लेना और सर के बाल काट लेना, तो तुम भी उस कुर्बानी के उतने ही अजर के हकदार हो जाओगे। यस, नमाज के बाद। इसलिए जब जो लोग नहीं इस्तिताअत रखते तो उनको तो कुर्बानी का अजर मिल जाएगा, लेकिन जो इस्तिताअत रखते और अगर वो भी कर लेंगे उनको भी अजर मिल जाएगा।
हाजी के साथ मुशाबिहत है बेसिकली. हाजी के लिए एहराम की पाबंदियां हैं ये कि वो एहराम में ना बाल काटेगा ना नाखून काटेगा. ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही चांद निकलने से पहले अगर आपने मगरिब की नमाज से अजान से पहले अपने नेल्स भी काट लीजिए आज, क्योंकि आज शुरू हो जाएगी कल से, मतलब आज मगरिब से शुरू हो जाएगी पहली ज़िलहज, तो आज आप लोग अपने नेल्स काट लीजिए, अपने बालों को कर लीजिए साफ वगैरह, जो भी आपने करना है वो सब कर लें. और फिर 10 दिन तक कुछ नहीं करना. अब किसी की दाढ़ी निकल रही है, किसी के कहीं से बाल आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं या बड़े हो रहे, वो कब करने हैं? जब हमारी नमाज हो जाएगी उसके बाद करेंगे और फिर काटेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हमें मजीद कुर्बानी का अजर भी मिल जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह. जी हाँ, लेडीज के लिए भी एक हाजी से मुशाबिहत है. जो लोग हज करने नहीं गए वो हाजी से मुशाबिहत करेंगे अपनी, और अपनी नियत ये करेंगे, अल्लाह तू हमारे लिए भी हज का सवाब अता फरमा. और हज का सवाब कैसे मिलता है? वेरी गुड. वालिदैन को मोहब्बत से देखने से भी अजर मिलता है. हज का, हज मबरूर का अजर मिलता है. अच्छा, अगर अपनी कुर्बानी ना करें, अल्लाह के नाम पे हम कर सकते हैं. बिल्कुल, अल्लाह के नाम पे आप उम्मत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था. उनको हजरत अली को कहा था कि मेरे बाद भी मेरी तरफ से मैं उम्मत के नाम का एक मेढा ज़िबा करते रहना. तो उम्मत के लिए कर देना. अल्लाह इससे उम्मत के लिए मग़फ़िरत फरमा. उम्मत के लिए कर दे, नबी की सुन्नत है ना. उनके लिए कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. हाँ जी, वालिदैन के लिए कर सकते हैं, जो और फौत शुदगान है हमारे उनके लिए कर सकते हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए कर सकते हैं. पहले अपनी कुर्बानी कर रहे हो वो in addition, एक्स्ट्रा. हाँ तो जी, आप वो हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. जैसे मैं एक बकरा कर रही हूँ तो मैं नहीं, आपके ऊपर तो लाजिम अगर नहीं है, और अगर आप करना चाहती हैं तो आप उस पर जैसे औरतें भी साहिब हैसियत होती है, इतने जेवर होते हैं, हम ज़कात तो देते बस हैं, फिर आप तो करें. हम क्यों नहीं आपके करते? पास जो जमा शुदा रकम है उसमें से करें. हाँ जी. आपके वो कफील ही दे चलो. रहा होता है ना. नहीं जेवर आप मालिक हैं. अच्छा, तो कफील दे रहा था. नहीं, इसमें ये दो आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था, उसमें लड़ने की बात नहीं. दो आ रहा है. एक तो ये कि अगर आपका हस्बैंड कर रहा है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द होल फैमिली. और अगर आपका दिल करता है कि आप खुद से अलहदा भी करें, और आप जब समझती है कि आपको इतना जेवर है और आप ज़कात देने वाली हैं, तो आप अपनी ज़कात खुद देती हैं, तो आप अपना खुद भी कर सकती हैं. अगर आपका शौहर कहता है कि मैं 2 कुर्बानियां करूंगा, एक अपनी भी और एक बीवी की तरफ से भी, तो वो अदा हो गई. अब आपके शौहर ने आपकी तरफ से भी दे दी और अपनी भी दे दी, तो फिर भी आपके पास माल है और आप कहती हैं कि मैं देना चाहती हूँ, तो दे दे. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे अपने हज पे. हम कहते हैं एक बकरा ही हो जाए. अब आप समझ गए? नहीं बाजी, उन्होंने अपनी तरफ से किए. यस, उन्होंने अपनी तरफ से किए थे. हजूर की तरफ से 100 ऊंट थे, और हजूर ने 60 ऊंटों को ज़बा किया और 40 ऊंट हजरत अली को कहा कि अब तुम कर दो बाकी ज़बा. कितनी ताकत. समझ रहे हैं आप? कुर्बानी का फलसफा क्या है ये भी समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला लोग कहते हैं कि ये पैसे किसी और का ये सब गलत है. देखिए ये बात भी आपकी बात में इसको जवाब यहीं पर दे दूं. हमारे दीन के कुछ उसूल कतईया हैं, कुछ कतई उसूल हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता. जब अल्लाह ने कहा कि कुर्बानी करनी है तो करनी है, कुर्बानी ही करनी है, चाहे जो भी है. हमने अल्लाह को इस कुर्बानी से सिर्फ ये साबित करना है कि अल्लाह ये कुर्बानी तो क्या तू जान भी मांगेगा तो तेरे लिए तैयार है. हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार. कश्मीर को नहीं भेजा, कुर्बानी करें. यस, आप गजा और कश्मीर में भी कुर्बानी भेजिए, कुर्बानी भेजिए. वो लोग लेकर जा रहे हैं, कुर्बानी का गोश्त पहुंचा रहे हैं, टिन्स में जाएगा. बैतुल सलाम वाले लेकर जा रहे हैं. हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, वो लोग टिन्स में लेकर जाएंगे और वहाँ पर आप उनको देना चाहते हैं फलस्तीनियों को, गजा वालों को, तो आप भेज सकते हैं, लेकिन कुर्बानी ही भेजनी है, पैसा नहीं पे. यानी इसको उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता. ये ठीक हो गया. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. एक चीज सदक़ल्लाहु शौकत अज़ीम. वगैरह को भेजते हैं कि उधर कुर्बानी हो रही है, उनको
आपको पैसे भेज देते हैं कि आप कुर्बानी हाँ जी, ऐसा हो भी ये जाए। भी हो जाती है, बिल्कुल हो लेकिन जाती है। अगर कोई ना कर रहा हो, जैसे कि लोग ऐसे भी करते हो ना शायद, हाँ कि कहेंगे भी हम कुर्बानी करेंगे, आप अपने हिस्से डाल दें या कुछ, और वो ना करें, तो आपकी कुर्बानी को क्या होगा? आप फिर ऐसे लोगों को क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे नहीं, हो? मतलब फिर कि उसका लोग- आप गुनाह trustworthy उनके लोगों को साथ- दें। हाँ, उनको दें आप। आप ट्रस्टवर्दी लोगों को तहकीक करके। तहकीक करके दें, उनको पूरा आप उसके बारे में मालूम करें कि ये लोग वाकई हैं ऑथेंटिक, इनको दिया जाए, उनको दें। फिर आप ऐसे ना करें, अमानत अहले अमानत के सुपुर्द करो। और अभी हमने दूसरी पढ़ा, बात ये है कि देखो ठीक है? उनको गुनाह होगा ना। वो तो जाहिर है, लेकिन आपने अल्लाह का हुक्म पढ़ लिया कि अमानत है, फिर अहले अमानत के सुपुर्द करो, फिर बाद में कसूर तो फिर तुम्हारा ही हुआ। अल्लाह अल्लाह ताला ये हमसे पूछे कि तुमने बगैर तहकीक के क्यों दिया था? अच्छा, ठीक एक है, और बात, जहाँ मजबूरी हो वहाँ तो फिर कोई हल नहीं है। ये जो कुर्बानी के लिए नियत जरूरी है ना, ना कि वो जो जिससे ज़िबा करते हैं कि हम उसको हाथ लगाएं। ये अक्सर ये छुरी को हाथ कुर्बानी के जानवर को प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, उसका ख्याल रखें और उसको पानी पिलाएं, उसको सब कुछ करें, उसको प्यार करें, उसको हाथ लगाएं, इसकी कोई मुमानियत नहीं है। बेसिकली आपने ये अल्लाह को शो करना है कि आप इस चीज से मोहब्बत करते हैं और ये महबूब चीज आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि जी सिर्फ हाथ लगा दो तो जी तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी, एक छुरी को हाथ लगा दो, हाँ, तो उससे इससे कोई हर्ज नहीं। अगर आपने, अब औरतें तो नहीं दुआ कर सकती ना, तो कोई बात नहीं, आप बता दें कि ये मेरी है और ये कोई और कर दे, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन छुरी को हाथ लगाना, ये भी जिब्त आ जाएगा ना, ये भी तो जिब्त ही आ जाएगा। हाथ लग तो हम परस्ती हो गई ना, और हाम हो गया ना। ये लोग जो गोश्त मार के देते हैं सदका, वो भी यही है जो- गोश्त मार के देना सदका भी तो तोहम परस्ती हो गई ना, कि अगर अगर हमने ना मारा होता तो नहीं मारा था इसीलिए ये आफत आ गई, अब हमने मार दिया है तो अब ये गोश्त हिफाजत कर लेगा। और ये जो होते हैं तावीज, इमाम जामिन, ये भी क्या है? ये भी जिब्त है, शिर्क जिब्त है। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला 70,000 लोगों को क़यामत में जन्नत के अंदर बाबे अमन से दाखिल करेगा, सिवाय उन लोगों के जो वहम तोहम परस्ती करते हैं। अल्लाह हमें उन वहमात से, तोहम परस्ती से बचाए, जिब तागूत से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम उससे पसंद आ जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन व अदखिलना बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़बी व ऐनी मिनल ख़यानती। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल पुलसिरात व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व क़िना अज़ाबल फ़ितनतिल महयाइ वल ममात। अल्लाहुम्मा आइज़ना मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा आइज़ना मिनल फ़िस्क़, अल्लाहुम्मा आइज़ना मिनल फ़िस्क़, अल्लाहुम्मा आइज़ना मिनल किब्र, अल्लाहुम्मा आइज़ना मिनर रिया, अल्लाहुम्मा आइज़ना मिनल बुख़्ल,
वल-जुब्नी वल-अज्ज़ी वल-कसली। या रहीम या ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाए। या रहीम, ये जो 10 दिन शुरू होने वाले हैं अल्लाह सुब्हाना ताला, इसमें हमें बढ़ बढ़ के नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें रातों की इबादत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें रातों में मुनाजात में लज्जत अता फरमा। अल्लाह रातों को जागना हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह दिन भर में बेहतरीन ज़िक्र इलाही के साथ तमाम इबादत और रोज़े रखने की और करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान से जोड़ दे। अल्लाह हमारी औलादों को भी कुरान से जोड़ दे। अल्लाह हमारी औलादों को भी नमाजी बना दे। अल्लाह नमाजों को कायम करने वाला बना। अल्लाह कुरान पर बेहतरीन अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमने जो पढ़ा है अल्लाह इसको हमारे दिलों में उतार, हमारे आमाल से अल्लाह हमारे आमाल से छलका के इस बात का सबूत दिलवा दे कि हम तुझे राज़ी करना चाहते हैं। अल्लाह हम तुझे मान कर तेरी मानने वाले हैं। अल्लाह तुझ पर ईमान ला के अमल सालिहात करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला अमल सालिहात करना सिखा दे। अल्लाह अमल सालिहात की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह अमल सालिहात की आगाही अता फरमा और अल्लाह गैर सालिह अमल से महफूज फरमा ले। अल्लाह अमल मुतकब्बला बना के अल्लाह ये तमाम अमाल हमारी निजात और बख्शिश और जन्नत के हसूल का जरिया बना दे। या रहीम या ज़ुल जलाली वल इकराम, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था, आप अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं, हमारे सीनों के हालात, हमारे ख्यालात, हमारी ख्वाहिशात से वाकिफ़ हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी तमाम मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह हर चीज़ जो तूने अता फरमाई है उस पर तेरा शुक्र है। अल्लाह हर चीज़, हर नेमत जो तूने दी है उस पर तेरा शुक्र है। अल्लाह हम तेरा शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह करोड़ों अरबों खरबों जिक्र है, शुक्र है। अल्लाह जितना तूने दुनिया में ज़र्रात पैदा किए अल्लाह उनकी तादाद भी खरबों तादाद के मुताबिक अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा फरमाते हैं। अल्लाह हमारे शुक्र को कबूल फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल दे। अल्लाह सुब्हाना ताला ये जो अब हम आगे जो अशरा आएगा उसमें जो 9 ज़िलहज का रोज़ा है, जो अरफा के दिन का रोज़ा है, जो हमारे लिए 9 ज़िलहज होगी, अल्लाह उस पर रोज़े की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अगर 9 पूरे दिन के रोज़े इतनी गर्मी में ना रखे जाएं तो अल्लाह कम से कम उस 9 अरफा के दिन के रोज़े की ज़रूर तौफीक अता फरमा दे। जो हमारी ईद से एक दिन पहले का रोज़ा होगा अल्लाह सुब्हाना ताला उस रोज़े के एवज़ अपने वादे के मुताबिक 2 साल के गुनाह माफ़ फरमा देना। अल्लाह पिछला साल भी और आइंदा आने वाला साल भी अल्लाह सुब्हाना ताला इन तमाम नेकियों की जो हमने आज पढ़ी अल्लाह इनकी हमें तौफीक अता फरमा। और वो तमाम गलत आमाल जो हमने पढ़े उन सब आमाल से हम सबको और हमारी औलादों को बचने की तौफीक नसीब फरमा और हम सबको उन बातों से महफूज फरमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आमीन। जज़ाकल्लाह।